Yes, good morning students. As we have discussing about the epithelial tissue. हम epithelial tissue के बारे में पढ़ रहे हैं कि these epithelial tissue are present all over the body and even they are present inside the body and separate one body part from the other. और इसको हमने डिस्कस किया था कि it will be of 4 types. Right? पहले वाले को हमने क्या कहा था? Squamous epithelial tissue. तो क्या बोला था? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हमने क्या था, इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. वन विल बी अ सिंपल एंड अनदर वन बी अ स्ट्रेटिफाइड. राइट. सिंपल को हमने कहा था कि इन द लाइनिंग में प्रेजेंट है. स्ट्रेटिफाइड आपको बताया था कि ये ओसोफेगस वगैरह में प्रेजेंट है. तो वी आर डिस्कस्ड अबाउट द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. और सेकंड वन इज नोन एज योर कॉलुमनर. थर्ड वन इज नोन एज योर क्यूबॉइडल. And last one is known as your glandular. Right? So we will discuss or we will start about the columnar epithelial tissue. What is the structure of the columnar epithelial? The columns, long structures. और जो long structure they are the pillar-like structures. So their structure is pillar-like structures is present, and due to pillar-like structure, they are lying side by side. Lying side by side. If I am going to draw the diagram of this, it will be just like that. This is your basement layer, and you will see the structure. It will just like this. Right? So these are having the nucleus is here. And again above you will see that a layer will be formed. बहुत सारी layers बनती जाएंगी उसके ऊपर. It will be just like this. Right? So this is known as your nucleus. ये basement layer है. As I told you that epithelial tissue does not form a single layer. It may be more than one type of the layer. कि जरूरी नहीं कि एक सिंगल लेयर होगी, बहुत सारी लेयर्स मिलके बनते हैं. तो इसको हमने बेसमेंट में कहा है और इसके ऊपर रखा है. तो ये जो आपके सेल्स है, these are the pillar-like cells. Cells are present and nucleus is present at the lower end. Nucleus आपका, बाकी इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. जैसे what will where there is so these type of the tissue are present where absorption and secretion takes place. मैंने बताया था ना, absorption और secretion का फंक्शन है किसका? आपके epithelial cells का. तो जहाँ पे absorption और secretion होगा, वहाँ पे inner lining में आपके क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, just like inner lining of small intestine. कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वहां पे प्रेजेंट होंगे. और ये जहां आपका एब्जॉर्प्शन होगा और जहां पे एक्सक्रीशन होगा, वहां पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे? आपके कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने कहा कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बना होता है, लाइक दिस. ये देखो, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो आपके इनर लाइनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो आपका लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, which are having the these cilia-like structures are present. And these finger-like structures are known as your और भी इनको बोलते हैं. तो इसके अंदर जो आपके प्रेजेंट हो गए, जो लेयर बनी होगी, किसकी बनी होगी? आपकी कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की होगी. And it help in the absorption of the digested food. Right? तो कहाँ पे मिली है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में बनी. जो स्टमक है, स्टमक के अंदर भी और गॉल ब्लैडर के अंदर.
Gall bladder which release the bile juice. पैनक्रियास उसके साथ अटैच होता है आपका लीवर के साथ, बाइल जूस निकलता है, गॉल ब्लैडर में आपका फिक्स होता है, तो यानी एक्सक्रीशन करेगा, वहां से निकलेगा, तो उसकी ना लाइनिंग किसकी बनी होगी आपकी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। उसी तरह से जो स्टमक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होगी वो भी आपकी किसकी बनी होगी, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। So they are having the finger-like projection that is called cilia. अब जब इसके पास finger-like projection होगी जिसको cilia बोलते हैं, तब then it will be known as ciliated columnar epithelial tissue. तो इसको क्या बोलते हैं, ciliated columnar epithelial tissue. If I am going to make the diagram of this ciliated columnar epithelium, it is just like this. This is your basement layer. और इसके ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है आपके, दैट विल बी कॉलम लाइक, पिलर लाइक, जस्ट लाइक दिस। रेक्टेंगुलर नहीं होंगे आपके, कौन से प्रेजेंट होंगे, पिलर लाइक, बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। बट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिएटेड कॉलमनर, दे आर हैविंग द सीलिया प्रेजेंट ऑन इट्स आउटर। तो ऐसे सीलियास प्रेजेंट होंगे, और ये सीलिया क्या करेंगे आपके, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और आपके स्टमक और गॉल ब्लैडर के अंदर एक्सक्रीशन में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इट इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इवन दे आर प्रेजेंट इन, जो ये सिलिएटेड है, they are present in the respiratory tract. जो आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसको आपके विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स, दैट द म्यूकस, कई बार आपको गले में लगता है खराश वगैरह हो जाती है, वो खराश आपके नीचे चल जाते हैं कुछ पीकर, तो दैट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आपने इसमें एक सिंपल हो गया और एक आपके क्या हो गया, सिलेक्टेड हो गया। सिलेक्टेड का ये डायग्राम हो गया, सिंपल का ये हो गया। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनकी जो लेयर बनी होती है वो किसकी बनाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल की, व्हिच हैव द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, इवन दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूबॉइड। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। Cuboidal means cube like, made up of cup shape, cup shaped होंगे, long नहीं होगा उसकी तरह, something just like the square shape कह सकते हैं उनको, square shaped structure या cube like structures. Cube like structures are present in the surface view, they will be just like the polygonal. यदि हम इनको साइड में से देखेंगे, polygonal from surface view, ये कैसे दिखेंगे, हमें पॉलीगोनल दिखेंगे। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर cuboidal epithelial tissue? This is your basement and it is having the structure like this. Nucleus is present here. Right? और जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये लगेगा मानो मैं इसकी ऐसे एक स्क्वायर शेप में बनाऊं स्ट्रक्चर, बटेगा करने इसको। Right? You will see that polygonal structure is present in that, like that. तो सरफेस से देखोगे तो आपको कैसे लगेंगे इनके स्ट्रक्चर, पॉलीगोनल इन द नेचर। And they are having the nucleus. And these are the nucleus.
तो आपको कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है इसकी, क्यूबॉइडल की कप स्ट्रक्चर होगी या स्क्वायर शेप कह सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जब हम सरफेस पे देखेंगे ऊपर की हमें पॉलीगनल दिखेगी। पॉलीगनल का मतलब होता है मोर देन 4 साइड्स या कॉर्नर, एंड वेयर these are present in the lining of the kidney tubules. किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में मिलेगी, जो डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स है उसमें मिलेंगे ये। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में सबकॉन्सिलरी में, और जो आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जहां से आपका स्क्रीशन होना है वहां पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, these type of the tissues are present which are known as your cuboidal epithelial tissue. लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स यानी जहां पे आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना है, एक्सक्रीट होना, कुछ चीज निकलनी है, एक्सक्रीट होना है वहां पे। जैसे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेस वाटर है वो आपका यूरिन के थ्रू निकलेगा, तो उसकी लाइनिंग किसकी बनी होगी, क्यूबॉइडल की बनी होगी। स्लैवरी ग्लैंड्स है जहां से स्लाइवा स्क्रीट होता है वहां पे, और थायराइड ग्लैंड जहां से थायरोक्सिन हार्मोन होता है वहां पे आपकी किसी प्रेजेंट होगी, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल की होगी। देयर इज आल्सो सिलिएटेड क्यूबॉइडल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल होता है जैसे, वैसे इसमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल होंगे। If I am going to make the diagram of just like this, this is your basement. We are having the structures like this. So they are having the cilia present on here, and these are known as ciliated columnar epithelial cuboidal epithelial cells. तो इनको क्या बोलेंगे, ciliated cuboidal epithelial tissue। और इनका फंक्शन क्या है, जो आपके ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स है वहां पे आपके ये मिलेंगे, सो दैट दे कैन पुश द, आपका क्या किसको पुश करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल है वाटर के साथ है उसको पुश करेंगे, सो दैट इट विल बी गो इनसाइड योर यूरेटर एंड दैट विल बी कलेक्टेड देयर। तो आपका पता चलिए लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में कौन से मिलेंगे, आपके सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज आप प्रेजेंट होंगे। अब आपका लास्ट बचता है ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर नहीं ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड लाइक। तो जो कुछ एपिथेलियल टिश्यू है वो अपने आप को फोल्ड कर देते हैं इनवर्ड। कुछ सेल्स किसके, कुछ सेल्स किसके, एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड इनवर्ड, अपने आप को इनवर्ड फोल्ड कर लेते हैं टू फॉर्म द शेप ऑफ द ग्लैंड्स। अपने ग्लैंड्स की शेप लेने के लिए उसको इनवर्ड फोल्ड कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। और इस टाइप के सेल को क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। और इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और इनका मेन काम जस्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जो स्क्रीट होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वगैरह होता है सेल्स के अंदर, वो सारा का सारा किसके थ्रू होगा, इनके थ्रू होगा। दैट विल बी अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने 4 टाइप पढ़ी है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। अब हम नर्वस के बारे में पढ़ेंगे। मैं वो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू, इट इज लार्जर एंड इट विल टेक मच मोर देन वन क्लास, तो अभी वो शुरू करोगे तो खत्म नहीं होगा। तो टुडे आई विल स्टार्ट अबाउट द कनेक्ट नर्वस टिश्यू। हमें तो 4 टाइप पढ़नी है, एक कंप्लीट हो गया एपिथेलियल, मसल्स और कनेक्टिव रह जाएंगे। उससे पहले वी विल स्टार्ट अबाउट योर व्हिच वन, नर्वस टिश्यू। सबको पता है नर्वस टिश्यू में आपकी क्या प्रेजेंट होता है, ऑल ओवर द बॉडी नर्व्स आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट। All these come together to form the nervous tissue. ये तीनों के तीनों मिलके आपका सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम।
और नर्वस सिस्टम में आपके क्या क्या प्रेजेंट होंगे, नर्व्स प्रेजेंट होंगे, ब्रेन होगी और स्पाइनल कॉर्ड होगी. एज ऑल ऑफ यू नो दैट all the living organisms respond to stimuli as much as possible. जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली. स्टिमुली क्या होता है कि चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू व्हिच यू हैव टू रिस्पॉन्ड. जैसे आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे चलते चलते आपको लगता है कि एकदम जैसे कोई भी व्हीकल आपके आसपास आ रहा है एंड यू फील दैट यू विल बी हर्ट फ्रॉम दैट मूविंग व्हीकल. यू जस्ट पुश योरसेल्फ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो वो क्या कि आपने रिस्पॉन्ड किया उस चेंज के जो इन्वायरमेंट में उस टाइम पे हो रहा था. अब आगे आप चलते जा रहे हैं, आपने देखा कि रोड पे कुछ गंद पड़ा है या गिल्ली रोड है, आप अपने आप को बचाते हुए चलते हो, यानी आपने भी उस टाइम रिस्पॉन्ड किया किसके, उस स्टिमुली के. यानी जो चेंजेस उस टाइम में उस एनवायरनमेंट में है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. एंड इन दैट द मैसेज विल बी सेंड टू योर नर्व, और नर्व से होता हुआ वो स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास जाता है. ब्रेन आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पाइनल बिल्कुल बैक में गर्दन के पास प्रेजेंट होता है, नेक में. तो आप देखोगे कि ये तीनों चीजें मिलके आपकी क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं. जैसे आपने कोई भी रिस्पॉन्स दिया किसी भी अगेंस्ट, रिस्पॉन्स देने से पहले द मैसेज विल बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जाएगा किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास. तो स्पाइनल कॉर्ड विल गिव द रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट. छोटे मोटे के लिए ना वो ब्रेन के पास नहीं जाते, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं. डाउट? Who is there? Minu. Yes, Minu. Yes, Minu. रिपीट कर दूं? ओके, मैं ये बता रही हूँ कि जो नर्वस टिश्यू है, यानी बहुत सारे नर्व्स आपस में मिलकर आपके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं. और जो आपका नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं. यानी आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज गुड और बैड फॉर यू, एट दैट टाइम यू विल रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट. उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स करोगे. जैसे मैंने आपको भी बोला था कि रोड पे चलते जा रहे हो और आप क्या करते हो कि आपने जैसे देखा कि इट विल हर्ट यू, जो आपका व्हीकल है वहां पे वो जो चल रहा है वो हर्ट करेगा, आप अपने आप को पीछे की डायरेक्शन में पुल कर दें, यानी आपने उस टाइम रिस्पॉन्ड कर दिया. कभी आपके पीछे डॉगी वगैरह पड़ जाता है तो आप देखते हो बहुत स्पीड के साथ भागते हो. क्यों भागते हो? खड़े रहो वहीं पे, कई जगह खड़े रहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ देम, वुड अफ्रेड ऑफ देम, तो दे विल स्टार्ट रनिंग. क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसके अगेंस्ट कि हम रुके तो ये हमें काट लेगा या इट विल बाइट अस, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया. जैसे आप फ्लावर्स है, फ्लावर देखा आपने, आपको बड़ी अच्छी लगी उसकी फ्रेग्रेंस और उसको बार बार स्मेल करने की कोशिश करते हो, तो आपने वहां भी क्या दिया, रिस्पॉन्ड दिया उसके अगेंस्ट कि आपने वो अच्छी लगी, आपका उसको मन कर रहा है बार बार करने स्मेल करने का, तो आपने क्या किया, वहां पे रिस्पॉन्ड किया. तो ये रिस्पॉन्ड ये कैसे करते हैं हम? तो इससे पहले जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो देयर विल बी अ नर्व इम्पल्स इन देयर, एंड दैट नर्व इम्पल्स, यानी आपका जो हाथ है या ध्यान से भी आपने देखा पैर से आप किसी चीज को टच करने की कोशिश करते, एकदम पैर को पीछे हटाते हैं, तो दैट इम्पल्स, दैट सिग्नल, हम इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, सिग्नल. दैट सिग्नल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. किसकी फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है. और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो स्पीड होती है वो कितनी हाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड, लाइट की स्पीड लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है. तो देखो कितने सेकंड से जाएगा, हमारी कई किलोमीटर की तो है नहीं, तो हमारे तो बिल्कुल मिली सेकंड तक बहुत ज्यादा छोटे हिस्से में क्या होगा, वो सिग्नल जाएगा. एंड दैट सिग्नल इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय द नर्व्स. तो जो नर्व सेल्स के पास गया, नर्व सेल ने रिस्पॉन्ड किया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया, और ये रिस्पॉन्ड अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आपके मसल्स तक पहुंचता है. कहाँ तक पहुंचता है, मसल्स के पास पहुंचता है. और जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी, तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द मसल्स which causes the movement of body. तो वहां पे क्या होगी, movement of body. If I am writing on the board, the movement of my hand is taking place and I am moving from one place to other place due to writing, that there is a
हम क्या कहेंगे कि जो आपके नर्व सेल्स है और जो आपके मसल सेल्स है, इन दोनों में एक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन यू विल नॉट एबल टू डू दैट वर्क। तो जब मैं लिख रही हूँ, जिस टाइम पे मेरे नर्व सेल्स काम करे कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या लिख रही हूँ, उस टाइम पे मसल्स की मूवमेंट हो जाए, तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन between the nerve cells and the muscle cells, and due to that the animals can move from one place to another place, and he can write or can eat or anything else। जितने भी काम है वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, मसल की वजह से होते हैं। लेकिन मसल मूवमेंट कब होगी, जब हम वहां पे क्या होगा, नर्व सेल्स उसको क्या करेंगे, आपका सिग्नल देंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय नर्व सेल, नर्व सेल होता है क्या, नर्व सेल के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नर्व सेल, नर्व सेल is a highly branched structure। मैं कहूंगी इट इज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। जो नर्व सेल है दैट इज हाईली ब्रांच्ड, and a number of the cells are joined together by one end to end। एक दूसरे से एंड से, एक का एंड और दूसरे का क्या होगा, आपका स्टार्टिंग है वो एक दूसरे से ज्वाइन हो गए। इट इज हैविंग द ब्रांचेस लाइक दिस, and a long structure is present that is known as your axon। इस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सोन बोलते हैं। long body structure is present and that is known as your axon, right। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी, एक्सोन बोलूंगी। and the nucleus is present between them, इसको क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस। and the cytoplasm is present in that cell, ये क्या प्रेजेंट आपका, साइटोप्लाज्म, right। thread like structures are present on this, these thread like structures are known as the dendrites। thread like structures इसको क्या बोलते हैं, dendrites बोलते हैं। और the axon is attached to the nerve ending, तो बाद में किसके साथ अटैच होगा, nerve ending, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेल। Understand? That is the structure of the nerve cell। The nerve cell is the highly branched structure which is having the just head, body, and the tail is present. Head is having the high branches, and this highly branched structure is known as the dendrites. And the cytoplasm is present between them, with the nucleus is there, and a long body-like structure is present, which is known as the axon. And these axon ends at the nerve ending। ये जो nerve ending है, अगले dendrites के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उसकी नर्व एंडिंग अगले से करेगी, उसकी नर्व एंडिंग अगले से करेगी। तो आपका जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसके पास पहुंचता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, जैसे डेंड्राइट्स पे आया, इट विल बी चेंजेस इनटू द केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस में चेंज होगा, और केमिकल सब्सटेंस पे यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। फिर यहाँ से होता हुआ दोबारा से किसमें चेंज होगा, जैसे ही साइटोप्लाज्म से बाहर निकला, अगेन इट विल चेंजेस इनटू योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व एंडिंग पे पहुंचेंगे, और जैसे ही दूसरे में पहुंचेंगे, अगेन इट विल बी चेंजेस इनटू द केमिकल सब्सटेंस। एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस अगेन द मैसेज विल बी सेंड टू योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी, और जो रिस्पॉन्ड किया है उसका जो मेमोरी है that will be stored in the brain, और वो ब्रेन के पास जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। एंड द मूवमेंट ऑफ दिस योर बॉडी will be done with the help of the muscles, muscular cells कह सकते हैं, muscles कह सकते हैं, muscle cells। और जब ये muscles और nervous tissue आपस में coordinate करते हैं, तो a person or a animal or a human being or any living organism can move from one place to the other place। जैसे इसी nervous tissue की वजह से इस टाइप के cells तो उसके अंदर present नहीं होते, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर, लेकिन there will be a plant that will be known as touch me not plant। जैसे when you touch the leaves of that plant, the leaves are folded, leaves अपने आप fold हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा से क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आपने टच किया, टच मी नॉट प्लांट को छुई मुई भी बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। तो जैसे ही आपने उसको टच किया, तो व्हाट विल बी देयर,
there will be a chemical substance is released, and due to that there will be transpiration process occur, means loss of water is there, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या होते हैं, वो लीव्स हो जाते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे दोबारा पानी पहुंचने के बाद अगेन इट विल बिकम्स ओपन इन द स्ट्रक्चर, एंड दैट विल बी अबाउट योर नर्वस टिश्यू. ओके, नर्वस टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया. नर्वस टिश्यू में इतना ही आपको करना है. नेक्स्ट इज नोन एज योर कनेक्टिव टिश्यू. थोड़ा सा बता के छोड़ देती हूँ, एंड वी विल स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू टुमारो पॉजिटिवली. अब 2 दिन का लेक्चर है आपका. वन विल बी योर कनेक्टिव टिश्यू एंड अनदर विल बी योर मसल टिश्यू, मस्कुलर. तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे मैं बताऊं, कनेक्टिव मींस कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर. वन पार्ट ऑफ बॉडी को दूसरे से क्या करेगी, अटैच करेगी. इसमें आपके जैसे कार्टिलेज भी हो सकता है. कार्टिलेज आपको पता होगा क्या होता है. इसमें आपकी बोन्स भी हो सकती है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ेगी. इसमें लिगामेंट्स, टेंडन्स भी हो सकते हैं. इसमें एडिपोज टिश्यू भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा फैट क्या होगा, डिपोजिट होगा. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ब्लड. ब्लड एक्ट एज अ मोस्ट इंपोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू. नो डाउट कार्टिलेज, बोन्स भी है, लेकिन ब्लड है. ब्लड पूरे ऑल ओवर द बॉडी आपके मूव करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सबको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम क्या करता है, इसका करता है. यानी हमने खाना मुंह से खाया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, हैंड्स तक उसका पहुंचना उसकी एनर्जी का, और लेग्स तक पहुंचना, ब्रेन तक पहुंचना उस एनर्जी का, सबका सब किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड. ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. यानी जो ब्लड है वो कनेक्ट करने का काम करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे. आपको पता है ब्लड मेनली आपका कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. वन इज नोन एज योर आरबीसी, white blood cell. Second one is known as WBC, white blood cell. Third one is known as platelets, and fourth one is known as the plasma. ये जो 4 पार्ट्स हैं ये आपके किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ऑल आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर देयर. रेड ब्लड सेल जिसका मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना. डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि ये फाइट अगेंस्ट द जर्म सेल. जो भी आपकी फॉरेन बॉडीज है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, उनको मारने का काम है. प्लेटलेट है, ये भी फाइट अगेंस्ट है. ये जितने प्लेटलेट रहेंगे आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी. और प्लाज्मा क्या होता है, फ्लू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बॉडी व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस. यदि प्लाज्मा ही नहीं होगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. So these are the 4 components of the blood. We will discuss one by one of all this. Okay. If you are having any doubt related to that, you can ask, or otherwise I am